Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Scorpion Ascendant and how the month of September 2022 is going to pan out for the Scorpion Ascendant people. Let us first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Mars is passing through the 7th house. It entered here on 10th of August and it will stay here till 15th of October. So whenever the Ascendant Lord passes through the 7th house, one has to approach others and strike a conversation for their own progress. And this quality of interaction determines the probability of your success. In this case, Ascendant Lord is transitioning through the house of business, and the Lord of business is transitioning through the 10th house, which is the house of action, with the 10th house Lord Sun placed in its own house in the first half of September, which is 16th of September. So, this is an excellent position for people who are running their own businesses. Such combinations usually don't arise even during the transit very frequently. And Mars is also the sixth lord of service for the Scorpion Ascendant people. So, whether you are running your own business or you are in a job, in both the scenarios, the chances of progress are extremely good in the month of September. You will continue to get an opportunity to strike new partnerships in business and personal life, and this is going to provide an opportunity for you to shine in the public sphere, thereby increasing your reputation. People in public domain are going to be immensely benefited through this placement. Let us look at Jupiter. Jupiter is passing through the 12th sign, which is Pisces, and it is passing through the 5th house. Jupiter happens to be the lord of second house for the Scorpion ascendant people, and it is passing through the 5th house. It means that you will earn through your family members' speech by using your creativity and intellect, and you are going to earn through the education and even through speculation. See, Jupiter is going to pass through the star of Saturn, which is placed in a sextile from Jupiter. So all those who are in pursuit of the activities that are related to fifth house. So if you are using creativity at your work, you are an artist, advertisement related business, you are a painter, speculator, all of these will gain through their professions in the month of September. Saturn is the third and fourth house lord and will be passing through the star of Mars. So, people who are in service will have to make a lot of efforts in order to progress at their workplace. And end result will depend largely on the quality of effort that you can put during this point of time. So, a lot of hard work is going to be involved. We'll also look at Mercury. Mercury is the lord of 8th and 11th house for the Scorpion ascendant people and is currently passing through the 11th house only. The best part about this transit is that it is getting a 7th aspect from Jupiter. So all those people who are related to the jobs that are indicated by 8th house. So people who are in technical related jobs, those who you heavily utilize technology, who are into research or into insurance taxation, they will all get benefited through this placement of Mercury, and this aspect of Jupiter will also work wonder for them in enhancing their gains from such professions. Rahu and Ketu again are in a very good position. Rahu in sixth house is considered extremely good because it takes care of all the things that are related to the sixth house. So people who had taken a lot of loans, they'll be able to pay back their loans. People who are in litigation will be able to win in those litigation cases. They'll be able to overcome their enemies. If you have the unfortunate placement and you have a lot of enemies, then Rahu will also dismantle those enemies during this transit. Ketu in the 12th house is considered an excellent position. All those people who have Ketu in their 12th house in the birth chart, it is considered to be their last birth, and they will obtain what we call it as the higher dimension of spirituality, which we call as moksha. Now there are also certain dates when a person needs to be very careful, and for Scorpion ascendant people, these dates in the month of September are 1st and 2nd September, 13th to 17th of September. So all 5 days and
28th and 29th of September. So I'll repeat: 1st and 2nd September, 13th to 17th of September, and 28th and 29th of September. These are the dates when the Scorpion ascendant people need to be careful and they should avoid taking any key decisions. If you are a workaholic person and if you want to progress on your career front, then month of September will be excellent for you. Whether you have a business or a job, the planets are combining in such a way that they will bring you success on your work front. So this is overall the summary for Scorpion ascendant people for the month of September. If you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कि वृश्चिक लग्न के लिए सितंबर 2022 का महीना किस तरह के से साबित होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग लग्न स्वामी की बात करते हैं। लग्न स्वामी वृश्चिक लग्न के लिए मंगल होते हैं और वो सप्तम भाव में विराजमान है। ये यहाँ पर 10 अगस्त को एंटर हुए थे और यहाँ पे 15 अक्टूबर तक ये विराजमान रहेंगे। जब भी कभी लग्नेश सप्तम भाव से गुजरता है तो हमेशा व्यक्तियों को दूसरों को अप्रोच करना पड़ता है किसी काम के लिए। जैसे पॉलिटिशियन होगा तो उसको जाके आम जनता से मिलना पड़ेगा, उनके साथ कॉन्वर्जेशन करना पड़ेगा, और जो भी आपका क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्जेशन होगा वही आप ये चीज़ डिसाइड करेगा कि आप अपने काम में सक्सेस होते हैं या फेलियर होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लग्न स्वामी बिजनेस के घर से गुजर रहे हैं तो आपको लोगों को जाके मिल मिल के अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात हो रही है वो ये है कि मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम का स्वामी जो कि शुक्र है वो दशम भाव में आपके ही एक्शन वाले भाव में बैठा हुआ है। किसके साथ? दशम भाव के स्वामी के साथ ही। तो लग्नेश का सप्तम में जाना, सप्तमेश का दशम में जाना और दशमेश का दशम में होना, ये बहुत ही अच्छा योग बनता है गोचर में सितंबर के महीने में वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो यहाँ पे आपका अगर बिजनेस है तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी सितंबर के महीने में। देखिए, मंगल छठवें भाव का भी स्वामी बनता है, तो छठवां भाव सर्विस का भाव होता है। तो आप यही कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए भी ये महीना बेनिफिशियल रहेगा, बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन सर्विस वाले लोगों को भी कार्यस्थल पे सितंबर के महीने में सफलता मिलेगी। आप लोग नए लोगों के साथ पार्टनरशिप कर पाएंगे इस महीने में। आप अगर किसी जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं पर्सनल लाइफ में, क्योंकि सप्तम भाव से आपके पति पत्नी या आपके पर्सनल लाइफ के पार्टनर्स भी देखे जाते हैं, तो वो भी आपको नए यहाँ पर मिल सकते हैं। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी पब्लिक स्फीयर में, लेकिन उसके लिए आपको खुद जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो आप अगर पब्लिक स्फीयर में डील करते हैं, सोशल सेक्टर में कार्यरत हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा सितंबर का। आपकी इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। एक नज़र गुरु पे डालते हैं। गुरु स्वयं के ही राशि से गुजर रहे हैं पंचम भाव से, और गुरु यहाँ पर द्वितीय भाव के भी मालिक बनते हैं। तो द्वितीय भाव के मालिक का पंचम भाव से गुजरना यानी कि आप अपनी वेल्थ लगा सकते हैं पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में, यानी कि स्पेक्यूलेशन या शेयर बाजार में भी इस महीने में आपको सोच समझ के पैसा लगाने से अर्निंग हो सकता है। आप परिवार के थ्रू अर्न कर सकते हैं अगर आप विद्या से रिलेटेड क्षेत्र में हैं, क्योंकि गुरु तो स्वयं ही विद्या का स्वामी एजुकेशनल सेक्टर में है, कोचिंग बिजनेस में है, तो भी ये समय आपके लिए अच्छा निकलेगा। आपके धन की वृद्धि होगी इस समय में। अभी गुरु शनि के नक्षत्र से गुजरेंगे सितंबर के महीने में, और शनि और गुरु का एकादश योग बन रहा है जिसे हम लोग सेक्सटाइल योग भी कहते हैं विदेशी भाषा में। तो यहाँ पर चूंकि शनि के साथ एक बेनिफिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अगर आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जॉब्स में हैं, स्पेक्यूलेशन में हैं, या आप कोई भी कलात्मक कार्य करते हैं जैसे पेंटर हैं या फिर स्कल्पचर हैं, तो ये अच्छा महीना है इन प्रोफेशंस के लिए भी सितंबर का। शनि तृतीय और चौथे भाव के स्वामी होते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए, और ये यहाँ पे मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे। तो जितने भी लोग सर्विस में हैं उनको यहाँ पे बहुत जोर लगाना पड़ेगा। कोई अगर आपको प्रोग्रेस करनी है वर्क प्लेस पे, तो क्योंकि शनि मेहनत करा के मानता है, तो अगर आप शनि की ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कड़ी मेहनत के अलावा और कोई दूसरा उपाय होता नहीं है उसकी ऊर्जा इस्तेमाल करने का। और आखिरी में आपको परिणाम इसी बात पे मिलता है कि आपने कितना क्वालिटी का एफर्ट किया था, क्योंकि शनि खाली आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड करता है, उसको बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बुध
अष्टम भाव और 11वें भाव का मालिक बनता है वृश्चिक लग्न के लिए, और वो 11वें भाव में ही भ्रमण करेगा। और यहाँ पे गुरु की 7वीं दृष्टि बुध के ऊपर पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। 11वें भाव के स्वामी का 11वें भाव से गुजरना ही आपके गेन्स को डायल अप कर देता है। और यहाँ पर अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं, यानी इंश्योरेंस में है, टैक्सेशन में है, एक्चुरीज में है, कोई भी ऐसे व्यवसाय में जहाँ पे आपको खोद के चीजें निकालनी पड़े, चाहे वो सीबीआई रॉ जैसे संस्थाएं हो, या आप डेटा माइनिंग के भी काम में हो सकते हैं, छुपी हुई चीजों को सतह पर लाना, तो ये सब के लिए अच्छा समय निकलेगा। बुध यहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट देके जाएगा। अगर आपकी बुध की महादशा चल रही है तो रिजल्ट आपको और भी अच्छा मिलेगा। अब राहु और केतु के बारे में चर्चा करते हैं, तो राहु केतु की स्थिति बहुत अच्छी है। राहु 6वें भाव में जब भी बैठता है, अगर लग्न कुंडली में बैठा है, तो व्यक्ति के सारे रोगों का, सारे रिपु का यानी शत्रु का नाश कर देता है। अगर आपके साथ कोई कोर्ट कचहरी में उतरता है तो वो भी हमेशा पराजित हो जाता है, लेकिन ये उनकी कुंडली में होता है जिनकी जन्म कुंडली में राहु 6वें भाव में हो। ऐसे लोगों को बीमारियां भी ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाती। यहाँ पे 6वें भाव से जाता हुआ राहु आपको सारी बीमारियों से तो मुक्त रखेगा ही, लेकिन यहाँ पर वो आपको शत्रुओं का भी नाश करने में काफी सक्षम रहेगा। केतु की 12वें भाव में स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि केतु जिनकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में होता है, उनके लिए बोला जाता है कि ये इनका आखिरी जन्म है और इसके बाद ये मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो केतु व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, और कई आपके साधु संतों की कुंडली में भी आपको 12वें भाव में केतु ही बैठा हुआ देखने को मिलता है। अब महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है। ये वो दिन है जब चंद्र आपके 6, 8, 12वें भाव से गुजरता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति के सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो सितंबर के महीने में जिन दिनों में वृश्चिक लग्न वालों को सावधान रहना है वो है 1 और 2 सितंबर, 13 से लेके 17 सितंबर, पूरा 13, 14, 15, 16, 17 और 28 और 29 सितंबर। तो कुल मिला के आपके पास 9 दिन है जब आपको सितंबर के महीने में कोई बड़ा निर्णय लेना अवॉइड करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप एम्बिशियस हैं और कार्यस्थल पे प्रगति करना आपका मेन उद्देश्य है, तो ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत जोरदार रहेगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, 11वें भाव का स्वामी 11वें में, लग्नेश सप्तम में, और सप्तमेश दशम में, दशमेश के साथ, ये बहुत बढ़िया समय है तरक्की करने के लिए। तो ये ओवरऑल आपका समरी है वृश्चिक लग्न वालों का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।